Hi, good afternoon everyone. Welcome today to a very interesting section on current affairs. I am Dr. Charu Datta, Director, PROCLAT Success Ahead, Bhopal. Okay, so I am going to cover two very important geopolitical issues today. These are the two important topics which have been in news lately, and every Clat aspirant must know the details of these two issues. Okay, so it is very important from the examination point of view. With this, I am starting the first topic for the day, and that is Nepal's controversial new map. Nepal's controversial new map. Okay, so what is this all about and how it has affected India and how it has actually affected relations of India and Nepal? When I took the orientation class, मैंने उस वक्त बताया था कि एक बहुत important section होता है स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स में, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स का. ओके, सो दिस इज द टॉपिक दैट विल कम अंडर दैट पर्टिकुलर सेक्शन, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स. ओके, इंटरनेशनल अफेयर्स का इम्पैक्ट. तो रिसेंटली नेपाल की जो पार्लियामेंट है, नेपाल की जो गवर्नमेंट है, दे हैव प्रपोज्ड अ न्यू पॉलिटिकल मैप फॉर देयर कंट्री. So what is the controversy all about, and why is India objecting that new political map that has been proposed by the Nepal's parliament? So here you can read all the details, and don't worry, I'll be explaining this topic in detail with the help of maps. तो maps की मदद से आपको ये topics बहुत detail में समझ में आएगा. Okay, so recently what happened on 18th of June, that was yesterday, Nepal's parliament unanimously passed the constitutional amendment bill. Okay, so there are two key words over here, parliament, as you can read, and the second one is constitutional amendment bill. So let me complete the sentence first, then I'll tell you what are these key words. To update the political and the administrative map of the country, which include territories in India's Uttarakhand state. So this is the controversy. अब ये जो नेपाल के पार्लियामेंट ने अपने देश के लिए नया मैप प्रपोज किया है, नया मैप पास किया है, एक बिल पास किया है उसको लागू करने के लिए, ये कुछ ऐसी टेरिटरीज को दर्शाता है जो इस वक्त इंडिया के कंट्रोल में है. और कौन से स्टेट में आते हैं? इट कम्स अंडर इंडियाज स्टेट ऑफ उत्तराखंड. ओके, so I told you there are two key words in this first line. One is parliament and the second one is constitutional amendment bill. हर देश का एक पार्लियामेंट होता है. लाइक इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, वी ऑल्सो हैव अवर पार्लियामेंट. ओके, सो इन अवर पार्लियामेंट देर आर बेसिकली टू हाउसेस. पार्लियामेंट जब मैं वर्ड यूज करती हूँ, आई विल एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर वर्ड इन डिटेल व्हेन वी विल डिस्कस इंडियन पॉलिटी. ओके, तो पार्लियामेंट में जैसे मैं इंडिया की बात करूँ तो वी हैव टू हाउसेस, दैट इज लोकसभा एंड द अदर वन इज राज्यसभा. एंड ओवर द लोकसभा एंड राज्यसभा वी हैव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? So the three of these elements, I mean Lok Sabha, Rajya Sabha and the President of India forms Parliament of India. तो जैसे हमारे देश का जो पार्लियामेंट है, it is bicameral. Bicameral मतलब यहाँ पर दो हाउसेस हैं और उन दोनों हाउसेस के ऊपर होता है एक प्रेसिडेंट. तो जब भी किसी देश में कोई नया प्रपोजल या कोई नया बिल पेश किया जाता है, so first the bill has to be passed in Lok Sabha, then Rajya Sabha, I mean the two houses, and finally it must get the approval of the president, and then only the bill would become a law. बिल का मतलब होता है कोई भी प्रपोजल. यदि देश में कोई नया कानून लागू करना है, if any new law has to be implemented in the country, then it would be done by the parliament. How? एक प्रपोजल पेश किया जाएगा लोअर हाउस में, दैट इज लोकसभा, या अपर हाउस में, दैट इज राज्यसभा. और जब वो प्रपोजल दोनों हाउस से रिक्वायर्ड मेजॉरिटी से पास हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, फाइनली उसे इंडिया का प्रेसिडेंट अप्रूवल देते हैं, एंड देन इट बिकम्स अ लॉ इन द कंट्री. सो दैट लॉ इज कॉल्ड एज एन एक्ट. सो हियर आई वुड से, just a second, here I would say the bill becomes an act only after the approval of the parliament, and by parliament I mean only after the approval of Lok Sabha, Rajya Sabha and the president. So this was about India. So नेपाल के पास भी इसी तरह से दो हाउसेस हैं. नेपाल की जो पार्लियामेंट है उसमें भी दो हाउसेस हैं. इस सिस्टम को कहा जाता है बायकैमरल लेजिस्लेचर. सो उनका जो लोअर हाउस है उसे कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, and the upper house of their parliament is called as National Assembly. And then they have the president in Nepal. Okay,
सो उनका लोअर हाउस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अपर हाउस नेशनल असेंबली हेडेड बाय द प्रेसिडेंट। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इस पूरी पार्लियामेंट ने ये जो नया बिल पेश किया गया था, under which they were trying to endorse, they were trying to propose a new political map for Nepal, इस बिल को पास कर दिया गया है, इसे लागू कर दिया गया है। That means now it would become an act, और अब नेपाल अपने देश का एक नया पॉलिटिकल मैप इशू करेगा। ओके, सो आई होप आपको वर्ड पार्लियामेंट यहाँ पे समझ में आया है एंड यू अंडरस्टूड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ऐसा बिल जिसने ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिए हैं। ओके, सो सिंस दे वर यूजिंग द एग्जिस्टिंग मैप एंड नाउ द न्यू बिल हैज प्रपोज्ड न्यू चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट विल बी कॉल्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। This bill was first tabled in the parliament by Nepalese law minister on 31st of May 2020. Okay, the bill will incorporate an updated political map in the Constitution of Nepal 2072. नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल 2072 एंड दिस पर्टिकुलर ईयर इट करस्पॉन्ड्स टू द नेपाल संवत। जैसे आपको पता है कि हिंदी कैलेंडर जो है हमारा, इट रन अकॉर्डिंग टू द विक्रम संवत, राइट? तो उसी तरह से नेपाल के ट्रेडिशन में, उनके कल्चर में वो नेपाली संवत फॉलो करते हैं। सो दिस ईयर 2072 इट करस्पॉन्ड्स टू ईयर 2015। यस, नेपाल का जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो अभी इस वक्त उनके देश में लागू है, वो एक्चुअली एनफोर्स हुआ था 2015 में। ओके, सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल 2072 बिकॉज दिस वाज द नेपाल संवत ईयर एंड इन ग्रेगोरियन कैलेंडर और द इंग्लिश कैलेंडर इट इज 2015। ओके, नाउ नेपाल की जो इस वक्त की रूलिंग पार्टी है, उस पार्टी का नाम है नेपाल्स रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी। उस पार्टी के लॉ मेकर्स ने एक और रेजोल्यूशन टेबल किया है नेपाल की पार्लियामेंट में, मतलब एक और रेजोल्यूशन, एक और प्रस्ताव उन्होंने पेश किया है पार्लियामेंट में, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जिन नई टेरिटरीज को उन्होंने अपने नए पॉलिटिकल मैप में दिखाया है, दे वांट दीज टेरिटरीज बैक फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ इंडिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी टेरिटरीज हैं जिनको लेकर ये पूरी कॉन्ट्रोवर्सी ट्रिगर हुई है। आई एम गोइंग टू टेल यू द नेम्स ऑफ दोज टेरिटरीज। तो नेपाल के पार्लियामेंट ये कह रही है कि अब हम इन टेरिटरीज को इंडिया के कंट्रोल से वापस नेपाल में ले लेंगे। ऐसा कब शुरू हुआ? ऑन 20th of May 2020 नेपाल रिलीज्ड a new map of its own territory that for the first time claimed all the area up to Kuti Yangtze River including Kalapani, Lipu Lake and Limpiadhura। तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। दीज आर द 3 टेरिटरीज जो इस वक्त इंडिया के उत्तराखंड स्टेट में आते हैं। इंडिया इनको कंट्रोल करता है, पर नेपाल ने जो अपना नया पॉलिटिकल मैप दिखाया है उसमें उन्होंने इन तीनों टेरिटरीज को क्लेम किया है। सो नेपाल कहता है कि ये राइटफुली नेपाल को बिलोंग करते हैं। द टेरिटरी ऑफ कालापानी, लिपुलेक एंड लिम्पियाधुरा, इट राइटफुली बिलोंग टू नेपाल, और इंडिया इसमें गलत तरीके से कब्जा करके बैठा है। ठीक है, दिस इज व्हाट दे मीन। Nepalese map show the area measuring about 335 square kilometers। जब आप कई आर्टिकल्स, कई सारे सोर्सेज को आप फॉलो करेंगे तो यू विल गेट द एरिया ऑफ अराउंड 335 to 400 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो इन एरियाज की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो तीनों टेरिटरीज हैं, कालापानी टेरिटरी, देयर इज अ लिपुलेक पास एंड लिम्पियाधुरा रेंज, दिस फॉर्म्स अराउंड 335 स्क्वायर किलोमीटर्स, जो नेपाल क्लेम करता है कि ये उनके दार्चुला डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। ठीक है, नॉट इन इंडियाज उत्तराखंड स्टेट। ओके, तो आई विल टॉक अबाउट ऑल द डिटेल्स हियर। अच्छा, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं, थोड़ा अच्छे से समझते हैं। ये नेपाल का ओल्ड मैप था। एज आई टोल्ड यू, मैं ये टॉपिक आपको, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ मैप्स एंड विद द हेल्प ऑफ गूगल अर्थ स्पेशली, तब आपको ये डिटेल में समझ में आएगा। ओके, तो ये नेपाल का पहला नक्शा था। दिस वॉज द ओल्ड मैप ऑफ नेपाल, वो जो यूज करते थे। तो इस एरिया को आप देखिए ध्यान से, दिस एरिया, दिस वॉज देयर प्रीवियस मैप विच दे यूज्ड बिफोर। तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रोजेक्शन नहीं दिखेगा, एंड दिस इज द न्यू मैप जो इस वक्त नेपाल की पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है। तो यू कैन क्लियरली सी दिस प्रोजेक्शन विच दे हैव शोन इन द न्यू मैप। और ये जो 3 टेरिटरीज के मैंने आपको नाम बताए, कालापानी टेरिटरी, लिपुलेक पास एंड लिम्पियाधुरा रेंज, ये इस एरिया में आते हैं। सो यू कैन से इट्स अ ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन विच नेपाल इज क्लेमिंग इन देयर न्यू मैप। ओके, नाउ हियर यू कैन सी the details of the 3 areas which I was talking about। Okay, वो जो triangular projection था ना, मैंने आपको पिछले मैप में दिखाया। So the detail of the triangular projection is something like this। ये है यहाँ पर एक लिपुलेक पास। Okay,
This is the Kalapani river. This entire area which you can see in dark blue, this is the Kalapani territory. Okay? और यहाँ पर है ये लिम्पियाधुरा रेंज. So अभी तक नेपाल अपने बॉर्डर में काला पानी को दिखाता था, लिपु लेक को दिखाता था, but first time they have shown this लिम्पियाधुरा range as well. मतलब since 1998 Nepal has been claiming these two areas, Lipu Lake and Kala Pani. I will tell you the history of this as well. But पहली बार उन्होंने लिम्पियाधुरा रेंज को भी अपने मैप में दिखाया है. ओके, सो ये पूरी कंट्रोवर्सी क्या है, व्हाई इज इंडिया इंटरेस्टेड इन दिस लैंड एरिया, इन दिस काला पानी टेरिटरी. ठीक है, अब आप देख सकते हैं दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर एरिया, इट्स अ ट्राई जंक्शन बिटवीन 3 कंट्रीज. इट्स ट्राई जंक्शन. ये जो एरिया है इस वक्त इंडिया कंट्रोल कर रहा है, हालांकि नेपाल इसको क्लेम करता है, बट इंडिया की जो ITBP है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, वो मौजूद है लिपु लेक पास पर. जो इंडिया चाइना का बैटल हुआ था 1962 का, वो बहुत ही फेमस बैटल है, सीनो इंडियन वॉर के नाम से आप पढ़ेंगे इसे हिस्ट्री में. तो तब से सिंस 1962 इंडिया की जो ITBP है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, वो इस एरिया में कंट्रोलिंग करती है, पेट्रोलिंग करती है. ओके, और ये एरिया एक ट्राई जंक्शन है बिटवीन 3 कंट्रीज, बिटवीन चाइना, बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. ओके, तो अब इस एरिया को सडनली काला पानी, ये जो पूरी ब्लू टेरिटरी है, इसको नेपाल क्लेम कर रहा है और ये कह रहा है कि दिस बिलोंग्स टू नेपाल हिस्टोरिकली एंड ज्योग्राफिकली. सो हम सारे फैक्ट्स यहाँ पर डिटेल में समझेंगे. सो आई होप आपको द टेरिटरी इन कन्फ्लिक्ट समझ में आई होगी, दिस ब्लू टेरिटरी. और ये जो हिस्सा है ना राइट नाउ, मैंने कहा ये इंडिया कंट्रोल कर रहा है. सो दिस कम्स अंडर उत्तराखंड. ठीक है, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है. There is a district by the name of पिथौरागढ़. उत्तराखंड की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है दिस एंटायर काला पानी टेरिटरी. लेकिन नेपाल का कहना कि ये हमारे सुदूर पश्चिम प्रदेश की दारचुला डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है. ओके, सो इट्स रिटन इन द अपकमिंग स्लाइड्स. नेपाल का कहना है कि हमारी दारचुला डिस्ट्रिक्ट में आता है, पर इंडिया का कहना है कि हमारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि उत्तराखंड स्टेट की एक डिस्ट्रिक्ट है. ओके, अब आगे देखते हैं. अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू आस्क यू ऑल दिस क्वेश्चन. जस्ट ट्राई टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन ओवर हियर इफ यू कैन. व्हिच स्टेट्स ऑफ इंडिया शेयर बाउंड्रीज विद द नेपाल? इंडिया के वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? सो आई एम एक्सपेक्टिंग आंसर्स विद यू ऑल. क्विकली रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन. विच ऑल स्टेट्स इन इंडिया शेयर बॉर्डर विद नेपाल? तो आपको ये क्लियर समझ में आएगा और टॉपिक डिटेल में. यस, कौन कौन से स्टेट्स हैं जो नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? ट्राई टू आंसर दिस. ओके, ओके फाइन. ओके, so let me tell you, there are 5 states in India which share border with Nepal, and these Indian states are Uttarakhand, जैसा कि अभी हमने देखा, then we have Uttar Pradesh, we have Bihar, we have West Bengal and Sikkim. Okay, तो यहाँ आप इस मैप में देख पाएंगे. ओके, दिस इज नेपाल, ये इंडिया है. तो कौन कौन से स्टेट्स हैं? उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, दिस इज सिक्किम, और यहाँ पर एक छोटा सा टेरिटरी है वेस्ट बंगाल की जो बॉर्डर है, जो वो शेयर करता है. सो डू रिमेंबर दीज 5 स्टेट्स. ओके, सुब्रत, यू आर राइट, यू वर एबल टू टेल मी 3 out of 5. सो दिस इज द आंसर. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर समझ में आएगा कौन कौन से इंडियन स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं. ओके, अब ये पूरी कंट्रोवर्सी है कि इंडिया काला पानी टेरिटरी को कंट्रोल कर रहा है, फिर अचानक से नेपाल व्हाई इज नेपाल क्लेमिंग दिस एंटायर टेरिटरी? सो टू अंडरस्टैंड द एंटायर इशू वी हैव टू गो बैक टू द हिस्ट्री. यहाँ पर स्टैटिक जीके का रोल आता है, क्योंकि मैंने कहा ना कई ऐसे टॉपिक्स हैं जब आप उनको करंट इश्यूज में पढ़ते हैं, सो यू नीड टू हैव द प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर बैकग्राउंड. तो हिस्ट्री यहाँ पर हमको थोड़ी सी जाननी पड़ेगी. देखो, नेपाल जो था दिस वॉज कंट्रोल्ड बाय द किंगडम ऑफ गोरखास. यहाँ पे गोरखास का कंट्रोल था, देयर वॉज अ किंगडम ऑफ गोरखा, और यहाँ पे किंग हुआ करते थे, देयर वॉज अ मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेब्लिश्ड दैट टाइम. तो जब इंडिया में आपको पता है कि फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स ब्रिटिश ने हमारे कंट्री को कंट्रोल किया है, एंड ब्रिटिश जो थे दे वर कंट्रोलिंग बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. ओके, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इनके बीच में और गोरखा किंगडम के बीच में जो नेपाली किंगडम था, ओके, इनके बीच में एक वॉर हुआ. एक्चुअली ब्रिटिश का जो इंटेंशन था वो था एक्सपेंशन का,
और ब्रिटिश को समझ में आया कि नेपाली जो टेरिटरी है, जो गोरखा किंगडम की जो टेरिटरी है, दैट इज वेरी वेरी फ्रूटफुल, इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू कंडक्ट ट्रेड विथ तिब्बत। एक्चुअली ब्रिटिश ट्रेड कंडक्ट करना चाहते थे अलॉन्ग विथ तिब्बत दैट टाइम। तो तिब्बत के साथ ट्रेड करने के लिए उनके पास जो सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था कि वो गोरखा किंगडम की कुछ टेरिटरीज को कंट्रोल कर ले और वहां से वो तिब्बत के साथ ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ में वहां पर सिख एम्पायर हुआ करता था एंड इट वाज अ वेरी लॉन्ग रूट फॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। फाइन, सो व्हाट दे डिसाइडेड, दे स्टार्टेड अ बैटल विद द गोरखास, ओके। और उस बैटल को कहा जाता है एंग्लो नेपालीज वॉर। आप इसको कुछ बुक्स में एंग्लो गोरखा बैटल या एंग्लो गोरखा वॉर के नाम से भी पढ़ सकते हैं, जो लगभग 2 साल चला था। स्टार्टेड ऑन 1 नवंबर 1814 और एंड हुआ 1816 में गोरखास की डिफीट के साथ। यस, तो ट्रेन्ड ब्रिटिश आर्मी ने गोरखा आर्मी को हरा दिया था एंड फाइनली 1816 में एक म्यूचुअल अग्रीमेंट साइन किया था। आपको पता है कि जब बड़े बड़े बैटल्स होते हैं तो ऑलवेज एंड विद सम ट्रीटीज और सर्टेन अग्रीमेंट्स। तो 1816 में भी एक ऐसी ट्रीटी साइन की गई, ट्रीटी का मतलब होता है एग्रीमेंट, and that was a very famous treaty of Sugoli, okay. So as you can all read over here, both the sides had ambitious plans for the mountainous north of Indian subcontinent. The war ended with the signing of Treaty of Sugoli in 1816, which ceded some Nepalese controlled territory to East India Company. तो जैसा कि मैंने बताया, गोरखास हार गए थे और उनको फोर्स किया गया ब्रिटिश के द्वारा कि आप अपनी कुछ टेरिटरीज को सरेंडर कर दीजिए, ओके। तो क्या क्या लूज किया था गोरखा किंगडम ने, नेपाल ने क्या क्या हार गए थे? सो दैट इंक्लूडेड एरियाज ऑफ सिक्किम, दैट वाज दार्जिलिंग जो आज एक इंडियन टेरिटरी है, टेरिटरीज ऑफ कुमायूं एंड ग्रहवाल हिमालयाज एंड द वेस्टर्न तराई रीजन। सो आई विल शो यू इन द स्लाइड ओवर हियर। आप देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया था, दिस वाज द किंगडम ऑफ गोरखा, दिस एरिया। और ये जो डार्क एरिया आप देख रहे हैं, इट्स रिटर्न ग्रहवाल, कुमायूं एंड इवन दिस एरिया, ये सब कुछ ब्रिटिश को उन्हें सरेंडर करना पड़ा। आज की तारीख में ग्रहवाल और कुमायूं हिमालय उत्तराखंड और हिमाचल का हिस्सा बनाते हैं एंड दिस टेरिटरी एज वेल। ऑन द वेस्टर्न साइड यू कैन सी द एंटायर सिक्किम इंक्लूडिंग दार्जिलिंग, दिस वाज लॉस्ट टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ से ब्रिटिश को एक रास्ता मिल गया था टू कंडक्ट ट्रेड विद तिब्बत, ओके। सो दिस वाज द सिचुएशन अंडर ट्रीटी ऑफ सिगौली, जो कि 1816 में 1816 में ब्रिटिश और गोरखा किंगडम के बीच में साइन होती है, जिसमें गोरखास को ये सारा एरिया लूज करना पड़ा। अब यहाँ पर इस ट्रीटी में कुछ क्लियर चीजें लिखी गई थी। उसी ट्रीटी को लेकर आज की डेट पर नेपाल आर्ग्यू करता है कि बेस्ड ऑन ट्रीटी ऑफ सिगौली, दिस एंटायर टेरिटरी ऑफ काला पानी which is controlled by India, it rightfully belongs to Nepal। क्या ऐसा लिखा गया था इस ट्रीटी ऑफ सिगौली में? देखो, ये जो ट्रीटी थी इट वाज रैटिफाइड। रैटिफाइड का मतलब होता है इसको फाइनल अप्रूवल मिल गया ऑन 4 मार्च 1816 बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बिटवीन द गजराज मिश्रा, जो उस वक्त राजा थे नेपाल किंगडम के, गोरखा किंगडम के, 1816 में। अब इस ट्रीटी ने क्या बोला? इस ट्रीटी ने ये बोला कि नेपाल की 2 बॉर्डर्स यहाँ पे डिफाइन की जाएंगी, ठीक है। दिस इज द ईस्टर्न बॉर्डर एंड दिस इज द वेस्टर्न बॉर्डर। सो दिस ट्रीटी क्लियरली डिफाइंड बॉर्डर्स ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ नेपाल विथ इंडिया। ये बीच का एरिया तो अनडिस्प्यूटेड था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दिस एरिया विच डायरेक्टली शेयर्स बॉर्डर विथ यूपी एंड बिहार, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर है इसको डिफाइन किया गया किसमें? ट्रीटी ऑफ सुगौली में। उसमें ये बोला गया कि ये जो ईस्टर्न बॉर्डर है ये बॉर्डर रन करेगी अक्रॉस अ रिवर। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है मेची रिवर। तो ईस्टर्न बॉर्डर बोला गया कि मेची रिवर के अलोंग इंडिया और नेपाल की ईस्टर्न बॉर्डर चलेगी और वेस्टर्न बॉर्डर चलेगी अलोंग द काली रिवर। यहाँ पर भी रिवर को यूज किया गया। तो बेसिकली आप देखो, ट्रीटी ऑफ सिगौली में 2 नदियों को यूज किया गया बॉर्डर डिफाइन करने के लिए। ईस्ट में बोला गया कि मेची रिवर विल डिफाइन द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल एंड वेस्टर्न बॉर्डर के लिए बोला गया काली रिवर। अब इस काली रिवर को आप नेपाल में कई नामों से, मतलब यूजुअली इस काली रिवर को कई नामों से आप पढ़ेंगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज महाकाली रिवर इन नेपाल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज शारदा रिवर, ठीक है। तो इंडियन साइड में इसको शारदा रिवर भी बोलते हैं, काली रिवर भी बोलते हैं, और नेपाल में इसे महाकाली रिवर भी बोलते हैं। तो तीनों नाम एक ही हैं। आपको अलग अलग आर्टिकल्स में यदि महाकाली, काली या शारदा पढ़ने में आता है तो डू नॉट बी कंफ्यूज्ड। फाइन, तो ट्रीटी ऑफ सिगौली में क्लियरली बोल दिया गया कि भाई ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर जो है इट विल रन अलोंग 2 रिवर्स। मेची रिवर विल फॉर्म द ईस्टर्न बाउंड्री एंड दिस महाकाली रिवर विल फॉर्म द वेस्टर्न बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। नाउ व्हाट हैपेंड? अब ये ट्रीटी डिलिमिटेड द बाउंड्री अलोंग द काली रिवर, ऑल्सो कॉल्ड एज शारदा एंड महाकाली रिवर।
नाउ अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ मैं आपको एक I want to show you this entire thing through a map so that you'll be able to understand it very nicely. Here is a map, our country India, and this is the Sharda river or the Mahakali river, जो western border mark की गई between the British East India Company and the Kingdom of Gorkhas. अब आप देखो, जब ये बोला गया कि western border will run along the Mahakali or the Sharda river, देखो ये तो पूरी western border चल रही है along the river, यहाँ कोई problem नहीं है. प्रॉब्लम तब होती है जब हम इस रिवर को थोड़ा अपस्ट्रीम फॉलो करेंगे. अपस्ट्रीम का मतलब होता है जहां से रिवर ओरिजिनेट होती है उस एरिया को बोला जाता है अपस्ट्रीम, और जहां रिवर ड्रेनेज के पास पहुंचती है उसको बोला जाता है द डाउनस्ट्रीम ऑफ द रिवर. तो जब आप इसके अपस्ट्रीम को फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि एक पॉइंट पे जाके ये जो महाकाली रिवर है ये डिवाइड हो जाती है. मतलब यू कैन सी देयर आर क्लियर टू सोर्सेज विच आर प्रोवाइडिंग वाटर टू दिस महाकाली रिवर. देखिए ये आपको दो सोर्सेज यहाँ पे दिख रहे हैं जो काली रिवर को वाटर सप्लाई कर रहे हैं. तो ब्रिटिश जब उस वक्त बॉर्डर को मार्क कर रहे थे, ओके, दे वर डिमार्केटिंग द बॉर्डर ऑन द मैप, तब उन्होंने देखा कि काली रिवर के यहाँ पे दो सोर्स उनको मिल रहे हैं. सो व्हाट दे अज्यूम दैट दिस ब्रॉडर रिवर, क्योंकि आपको मैप में भी दिख रहा होगा दिस इज द ब्रॉडर सोर्स एंड दिस इज कंपैरेटिवली थोड़ा सा थिन सोर्स है. तो ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि दे विल रन द बॉर्डर अक्रॉस द ब्रॉडर कोर्स. ये जो मोटी वाली नदी यहाँ पे दिख रही है ना, इसको बॉर्डर माना जाएगा, और ये जो पतली वाली स्ट्रीम है इसको बॉर्डर नहीं माना जाएगा. तो ब्रिटिश ने फाइनली क्या डिसाइड किया कि हम ये वाले कोर्स को, दिस द ब्रॉडर कोर्स, इस नदी को हम मान लेते हैं बॉर्डर, और यहां से लाइन डिमार्केट कर दी गई. अब देखो ये एरिया जो है, यू कैन सी दिस वन, इफ दिस वाज द बॉर्डर अज्यूम्ड बाय द ब्रिटिश, तो कायदे से इस वाले एरिया को ऑन द अदर साइड दिस एंटायर एरिया वुड ज्योग्राफिकली एंड वुड राइटफुली बिलोंग टू नेपाल, इजंट इट? क्योंकि ब्रिटिश ने तो बोल दिया कि हम इस मोटी वाली कोर्स को कंसिडर करेंगे बॉर्डर, इस पतले वाले स्ट्रीम को कंसिडर नहीं करेंगे. सो राइटफुली दिस एरिया शुड बिलोंग टू नेपाल. लेकिन क्या हुआ, कुछ सालों के बाद, मतलब ट्रीटी ऑफ सिगौली में तो इस वाले सोर्स को कंसिडर कर लिया गया था एज बॉर्डर, एंड दैट हैपेंड इन 1816. Now what happened, let me come back to the slide. Okay, so what happened after few years, कुछ 30-40 years के बाद, that was exactly 40 years के बाद, that is in 1865, ब्रिटिश ने बड़ी चालाकी से वो जो बॉर्डर थी उसको शिफ्ट कर दिया टू दी अदर साइड. जो मैंने आपको नैरो स्ट्रीम दिखाई थी उस तरफ शिफ्ट कर दिया. और जब ब्रिटिश ने उस बॉर्डर को ईस्टर्न साइड शिफ्ट कर दिया, ऐसा करने का उनका रीजन ये था, उनको लगा कि दिस एंटायर कालापानी टेरिटरी विच इज लाइंग इन बिटवीन द टू स्ट्रीम्स, आई शुड से द टू सोर्सेज ऑफ द काली रिवर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है स्ट्रैटेजिकली. ब्रिटिश को ऐसा समझ में आया कि तिब्बत के साथ, चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए ये जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पे सेवरल माउंटेन पासेस हैं, तो दिस वुड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और हमने शायद गलती कर दी है क्योंकि हमने रिवर की बॉर्डर ईस्टर्न साइड वाली, सॉरी वेस्टर्न साइड वाली कंसिडर कर ली थी, ब्रॉडर रिवर को कंसिडर कर लिया था. तो इवेंचुअली 1816 में ब्रिटिश क्या करते हैं, उन्होंने अपनी डेफिनेशन थोड़ी चेंज कर दी, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं दैट समटाइम अराउंड इन 1865 British shifted the border near the Kalapani to the watershed of Kalapani River instead of the river itself, thereby claiming the area now called as Kalapani territory. I've just shown you on the global map. अब देखो ये वाला जो ब्रॉडर सोर्स था और यहाँ से एक पतली सोर्स थी और ये मेन रिवर. सो दिस वाज द महाकाली रिवर. ये जो स्ट्रीम है इसका नाम है कूथी यांगती, और ये बेसिकली ओरिजिनेट होती है लिम्पियाधुरा रेंज के अंडर से. सो हियर वी हैव द लिम्पियाधुरा रेंज जो कि सोर्स है कूथी यांगती रिवर का. यहाँ पे है लिपुलेख पास जो कि सोर्स है यहाँ से कालापानी रिवर का. दिस इज द कालापानी रिवर, एंड कंबाइंड कूथी यांगती एंड कालापानी रिवर्स दे फॉर्म दिस काली रिवर या महाकाली रिवर या शारदा रिवर. तो पहले ब्रिटिश ने कूथी यांगती को कंसिडर किया था बॉर्डर, लेकिन बाद में 1865 में बड़ी चालाकी से उन्होंने मैप में चेंजेस कर दिए और उन्होंने इस लिपुलेख पास के अंडर से जो रिवर स्ट्रीम ओरिजिनेट होती है दैट इज कालापानी रिवर, उसको कंसिडर कर लिया एज अ राइटफुल बॉर्डर. तो अब ये इतना हिस्सा जो था वो भी ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया. सो दिस इज द प्रॉब्लम. ओके, यहाँ पर लिपुलेख पास है, यहाँ पे कालापानी जो है एरिया है, and this is the Kalapani river, this entire territory is called as Kalapani territory. Okay,
सो आई होप आपको अब हिस्टोरिकल फैक्ट्स इसके समझ में आए होंगे कि कैसे ब्रिटिश की गलती की वजह से, क्योंकि अच्छा एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर दूँ, व्हेन ब्रिटिश डिड शिफ्ट द मैप, उन्होंने जब बॉर्डर पूरी चेंज कर दी और उन्होंने लिपुलेख पास के अंदर से अपनी बॉर्डर को कंसिडर किया, तब उस वक्त गोरखा किंगडम के किंग्स ने अपोज नहीं किया था। मे बी द किंग्स वेयर नॉट बॉदर्ड अबाउट द कालापानी टेरिटरी बिकॉज नेपाल में डेमोक्रेसी काफ़ी बाद में आई है। नेपाल को डेमोक्रेसी 1990s में मिली है। तो इवेंचुअली जब उनकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गई एंड द गवर्नमेंट वाज एबल टू सी ऑल द प्रीवियस रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द गोरखा किंग्स, सो दे एक्चुअली रियलाइज्ड कि कितना बड़ा यहाँ पर फ्रॉड हुआ था या गलती हुई थी उनके किंग से, ठीक है। तो उस वक्त जब कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्टेब्लिश हुई, सो दैट वाज ईयर 1998, उस वक्त से नेपाल थोड़ा जागरूक हुआ एंड दे स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग अगेंस्ट द इंडियन ऑक्यूपेशन ऑफ द एंटायर कालापानी टेरिटरी। ओके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं व्हाट इज द कालापानी टेरिटरी डिस्प्यूट। सो आई हैव शोन यू ऑन द मैप, Kalapani is a disputed territory between India and Nepal that lies at an altitude of 3,600 meter on Kailash Mansarovar route. Okay, now let me go back to the previous map again so you will clearly understand here. Okay, तो ये थी बॉर्डर एक्चुअली जो ब्रिटिश ने डिलाइनेट की थी अंडर ट्रीटी ऑफ सिगौली, लेकिन बाद में 1865 को ब्रिटिश ने अपने मैप्स में इस बॉर्डर को कंसिडर कर लिया था, ऑक्यूपाइंग दिस एंटायर कालापानी टेरिटरी, ठीक है। तो ट्रीटी ऑफ सिगौली ने कौन सी बॉर्डर को कंसिडर किया था? इस बॉर्डर को, दैट वाज द कूथी यांगती रिवर। ओके फाइन। तो अब कालापानी जो डिस्प्यूट है वो इस टेरिटरी को लेकर हो रहा है। अच्छा, रिसेंटली देयर वाज अनदर डेवलपमेंट। व्हाट हैपेंड, क्योंकि अब यहाँ पर इंडिया की बॉर्डर पोस्ट है, आईटीबीपी कंट्रोल करता है लिपुलेख पास तक। ओके, सो रिसेंटली एंड यू नो दैट वी हैव द तिब्बत ओवर हियर, और आपको पता होगा यहाँ पे बहुत ही फेमस मानसरोवर लेक है तिब्बत में, और कैलाश मानसरोवर जो पिलग्रिमेज होता है वहाँ के लिए कई तीर्थयात्री यहाँ पर जाते हैं। तो रिसेंटली हमारी इंडिया की गवर्नमेंट ने दे कंस्ट्रक्टेड अ रोड कनेक्टिंग दिस कालापानी, ओके, टिल लिपुलेख पास। तो एक डायरेक्ट, देयर इज अ विलेज ओवर हियर, इस विलेज का नाम है गुंजी विलेज। तो एक रोड बनाई है, 80 किलोमीटर लॉन्ग रोड है जो कि इस एरिया को डायरेक्ट लिपुलेख पास तक कनेक्ट करता है। ओके, सो इससे क्या होगा, इस रोड के बनाने से जो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा थी, इनिशियली इट यूज्ड टू टेक अराउंड 5 days। ओके, और जो पिलग्रिम्स हैं उनको वाया सिक्किम होके जाना पड़ता था या चाइना के थ्रू होके हुए जाना पड़ता था, सॉरी नेपाल के होते हुए जाना पड़ता था। लेकिन रिसेंटली इस रोड के बन जाने से नाउ दिस 5 days जर्नी हैव बीन रिड्यूस्ड टू जस्ट 2 days। तो इन द मंथ ऑफ मे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है मिस्टर राजनाथ सिंह, ही इनॉग्रेटेड दिस न्यू 80 किलोमीटर लॉन्ग रोड विच विल प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्शन अप टू द लिपुलेख पास, और यहीं से सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है, ठीक है। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट द कालापानी डिस्प्यूट। इंडिया इस पूरी टेरिटरी को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, आई हैव टोल्ड यू। लेकिन नेपाल इसे अपनी दारचुला डिस्ट्रिक्ट का मानता है और सुदूर पश्चिम प्रदेश का हिस्सा मानता है। ओके, सो इट्स रिटन। ओके, अब यहाँ पे कुछ और हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। जैसे हम लिपुलेख पास की अगर बात करें, सो यू नो दैट 1962 में इंडिया और नेपाल के बीच में एक बैटल हुआ था। देयर वाज अ वॉर कॉल्ड एज सिनो इंडियन वॉर। सो उस वक्त इंडिया ने ये लिपुलेख पास को मतलब बंद कर दिया था, ठीक है, बट इट वाज अगेन रीओपन्ड इन 1997। ओके, और उस वक्त से 1998 से मैंने जैसे आपको बताया, तब से नेपाल जो है यहाँ पर क्लियरली ऑब्जेक्ट कर रहा है। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि लिपुलेख पास पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, जो इंडिया का बॉर्डर पुलिस है, उनका आउटपोस्ट है यहाँ पे। देन व्हाट इज द लिपुलेख टेरिटरी डिस्प्यूट, आई हैव टोल्ड यू। अब ये जो पास है यहाँ पे रिसेंटली अभी जो हुआ है डेवलपमेंट्स, आई हैव टोल्ड यू कि एक 80 किलोमीटर लॉन्ग रोड बनाया गया है, जिसको लेकर नेपाल की तरफ से ऑब्जेक्शन रेज हुआ है कि हाउ इंडिया हैज कंस्ट्रक्टेड दिस न्यू रोड अप टू द लिपुलेख पास विदाउट कंसल्टेशन विद नेपाल। नेपाल में एक्चुअली प्रोटेस्ट तभी शुरू हो गए थे, ठीक है, लेकिन इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट ऐसा आया कि भाई दिस एरिया कालापानी टेरिटरी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1960, इवन वे बिफोर दैट, राइट। एंड जब इंडो चाइना बैटल हुआ था तब 1962 से हमने वहां पर अपना आउटपोस्ट बनाया है, मिलिट्री आउटपोस्ट बनाया है। तो उस वक्त नेपाल ने ऑब्जेक्शंस क्यों रेज नहीं किए? व्हाई इज नेपाल क्रिएटिंग ट्रबल राइट नाउ? व्हाई इज नेपाल ऑब्जेक्टिंग नाउ? ओके, सो द लिपुलेख पास वाज अगेन ओपन इन 1997 फॉर द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स। और फिर इसके बाद कुछ और डेवलपमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि 2014 में इंडिया और चाइना ने इस लिपुलेख पास को एक बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट घोषित किया था। बॉर्डर पर्सनल मीटिंग पॉइंट का मतलब होता है
the military officers or the army officers from the two countries, that is from India or China, they could meet at this Lipo Lake Pass and they can discuss whatever issues they are facing. एक दूसरे के कंट्री के साथ जो भी इश्यूज हैं वो बॉर्डर पर्सनल मतलब जो बॉर्डर पे तैनात होते हैं उनके लिए ये मीटिंग पॉइंट बना दिया गया था. एंड ऑल्सो आफ्टर द इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट टू चाइना इन 2015, हमारे नरेंद्र मोदी जी एक बहुत ही फेमस वुहान समिट अटेंड करने के लिए 2015 में चाइना गए थे. तो उस वक्त उन्होंने बोला था कि लिपो लेक को यूज किया जाएगा एज अ ट्रेडिंग पोस्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इस वक्त भी नेपाल ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ऑब्जेक्ट किया था. यहाँ पे आप एक टेरिटरी और देखेंगे, दो इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कालापानी टेरिटरी, बट दिस इज अ सुस्ता टेरिटरी, जो मैंने बताया था कि नेपाल जो बीच वाला एरिया है नेपाल का विच शेयर्स बॉर्डर विद यूपी एंड बिहार. ठीक है, तो यूपी में एक एरिया है सुस्ता, ओके, दैट कम्स अंडर निचलौल डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो ये भी टेरिटरी डिस्प्यूट में है विथ नेपाल. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन. ओके, हाउ मेनी एरियाज आर अंडर डिस्प्यूट. अब रिसेंट अपडेट्स you will have to follow this. देखो क्या हुआ था, you all must be aware कि 2019 में जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था. जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा स्टेट हुआ करता था इंडिया का जिसका एक स्पेशल स्टेटस था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और जम्मू एंड कश्मीर को वो स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 370. तो आई नो मोस्ट ऑफ यू डोंट नो द डिटेल्स, बट आपने कम से कम आर्टिकल 370 तो सुना ही होगा. अंडर दिस आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर वॉज गिवन द स्पेशल प्रिविलेज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये एक ऐसा राज्य हुआ करता था जिसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था. बट आफ्टर 70 ईयर्स, काफी वेट के बाद, फाइनली इन अगस्त 2019 इस आर्टिकल को खत्म कर दिया गया था. इट वॉज एब्रोगेटेड एंड जम्मू एंड कश्मीर वॉज रीऑर्गेनाइज्ड. तो इस पूरे एरिया को रीऑर्गेनाइज करके फाइनली JNK और लद्दाख नाम की दो नई यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी. यस, जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करता था. सो ऑन 31st of October 2019, two new union territories were added under Constitution of India. One was the Union Territory of Jammu and Kashmir and one was the Union Territory of Ladakh. So you can clearly say, आप में से कुछ लोग confuse होंगे कि मैम this area here, we have the LOC over here, line of control, and this area is called as POK. Yes, you are right. पाकिस्तान occupied कश्मीर का area है ये, okay? जो एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर लिया था इन द बैटल ऑफ 1947, द फर्स्ट इंडो पाकिस्तान वॉर. बट हमारे नए हमारा जो नया पॉलिटिकल मैप जो हमारी गवर्नमेंट ने रिलीज किया है उसमें उन्होंने इस एरिया को लद्दाख का हिस्सा बनाया है. ओके, तो POK का एक हिस्सा यहाँ भी आता है जो यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK में है, जिसका नाम है आज़ाद कश्मीर. ओके, ये सारी चीज़ें आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ऑल्दो इट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर. तो उसी तरह से दो न्यू यूनियन टेरिटरीज इम्प्लीमेंट हुई थी सिंस 31st of October 2019. और इसके बाद जब जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, दो नए यूनियन टेरिटरीज बन गए, तो 2 नवंबर 2019 को हमारी गवर्नमेंट की एक एजेंसी होती है जिसका नाम होता है सर्वे ऑफ इंडिया. सर्वे ऑफ इंडिया का काम होता है इंडिया के लिए मैप्स को डिजाइन करना. ठीक है, कार्टोग्राफी करना, पॉलिटिकल मैप्स हो गए, ठीक है, फिजिकल मैप्स हो गए. सो व्हाट ऑल मैप्स, द सर्वे ऑफ इंडिया इज अ बॉडी ऑफ गवर्नमेंट जिसका काम होता है मैप्स को कार्टोग्राफी करना. ओके, तो उन्होंने 2 नवंबर को नया पॉलिटिकल मैप इंडिया का रिलीज किया जिसमें उन्होंने दो नए यूनियन टेरिटरीज बनाए, जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. और साथ ही उन्होंने इस कालापानी टेरिटरी को भी दिखाया था अपने पॉलिटिकल मैप में. और जब उन्होंने इस कालापानी टेरिटरी को दिखाया, नेपाल में बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे. सो आई एम शोइंग यू द आर्टिकल ऑफ अ फेमस न्यूज़पेपर द वायर. जब इंडिया ने अपना नया पॉलिटिकल मैप रिलीज किया था और उसके बाद रिसेंटली अभी आई हैव टोल्ड यू दिस अपडेट कि अभी मई 2020 में हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, इन्होंने एक नई रोड का इनॉग्रेशन किया है कनेक्टिंग अप टू द लिपो लेक पास. ओके, इंडियन टेरिटरी को लिपो लेक पास तक कनेक्ट कर रहे हैं. 80 किलोमीटर लॉन्ग रोड है. तो इस रोड के कंस्ट्रक्शन पर भी नेपाल ने आपत्ति जताई है. ओके, एंड हियर यू कैन सी, आई वाज शोइंग यू द आर्टिकल. ओके, सो दिस इज अ कटिंग ऑन फ्रॉम द वायर कि नेपाल के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतर आए और इस तरह से प्रोटेस्ट करने लगे कि एक बात तो ये कि इंडिया ने अपने नए पॉलिटिकल मैप में जो उन्होंने नवंबर 2019 में रिलीज किया था उसमें उन्होंने कालापानी टेरिटरी को दिखाया है, विच इज नॉट राइट. और दूसरा प्रोटेस्ट इस बार को लेकर कि उन्होंने रोड कंस्ट्रक्ट कर लिया अप टू द लिपो लेक पास फॉर द कैलाश मानसरोवर यात्रा. और ये भी उन्होंने कैसे कर लिया, बिकॉज दिस इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी. नेपाल ऑल्सो क्लेम्स कालापानी टेरिटरी. सो हाउ हैज इंडिया कंस्ट्रक्टेड द रोड विदाउट कंसल्टेशन विद द नेपाल? सो दिस इज द लेटेस्ट इशू. ओके, अब
आगे बढ़ते हैं। थोड़े से यहाँ पर अपने को समझने की ज़रूरत है कि which country is right actually. So you clearly understood the topic, you understood the details of the Kalapani territory, you understood what was Treaty of Sigoli, किस नदी को boundary माना गया था, what happened in 1869, you understood. So you should be able to analyze the topic कि कौन सही है। देखिए geographically देखें तो नेपाल is right. Why? Because ब्रिटिश ने ट्रीटी ऑफ सिगौली के अंदर उस ब्रॉडर सोर्स को पुथियांगती रिवर को माना था बाउंड्री, बट इवेंचुअली उन्होंने 1865 में उन्होंने उस कालापानी नदी को जो ईस्टर्न साइड है उस स्ट्रीम को कंसिडर कर लिया था बॉर्डर। अगर नेपाल को ऑब्जेक्शन रेज करना था तो उस वक्त करना था। सो इंडिया इज ऑल्सो राइट कि सिंस वी आर गार्डिंग दैट टेरिटरी सिंस 1962, और कहीं ना कहीं उस वक्त 1962 में जब इंडो सीनो वॉर हुआ था, नेपाल को भी डर था कि चाइना में इन्फिल्ट्रेट द नेपालीज बॉर्डर एंड मे क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द नेपाल किंगडम। उस वक्त तो नेपाल ने ऑब्जेक्शन नहीं किया था। नेपाल स्टार्टेड ऑब्जेक्टिंग जब वहां पर डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, सो अब आज के डेट पे अगर नेपाल उस एरिया को क्लेम कर रहा है, सो दैट इज नॉट राइट हिस्टोरिकली, बिकॉज सिंस लास्ट मेनी ईयर्स, दीज मेनी ईयर्स, फॉर ऑलमोस्ट 70 ईयर्स इंडिया हैज बीन कंट्रोलिंग दैट एरिया। फाइन। नाउ यहाँ पर कुछ मैंने आपको डिटेल्स बताए हुए हैं, बिकॉज आई टोल्ड यू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल ऑफ 2072। आई होप आपको समझ में आ गया है। 2072 इज द ईयर एज पर द नेपाल संवत। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन स्टेबल नहीं रहा है। इनफैक्ट नेपाल की जो करंट गवर्नमेंट है, इससे पहले भी कई गवर्नमेंट्स आई हैं और वो स्टेबल नहीं रही हैं। ऑलमोस्ट 7 टाइम्स वहाँ पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए हैं। फर्स्ट वॉज इन 1948, देन यू कैन सी इट वॉज 1951, then it was 1959, 1962, 1990, and finally the interim constitution of 2007. तो फाइनल जो संविधान आज वहां पर लागू है, that is the constitution that was implemented in 2015, which replaced the interim constitution of 2007. नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन तकरीबन 35 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 308 आर्टिकल्स हैं, 9 शेड्यूल्स हैं। व्हाट इज पार्ट, व्हाट इज शेड्यूल, व्हाट इज आर्टिकल, ये सब आपको समझ में आएगा जब मैं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिटेल्स बताऊंगी। अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कंपेयर करें यहाँ पर, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में आज वी हैव 25 पार्ट्स, वी हैव 395 आर्टिकल्स एंड वी हैव 12 शेड्यूल्स। फाइन, ओके। सो आज स्थिति ऐसी है कि जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है मिस्टर केपी शर्मा ओली। सो ही हैज़ बीन गिविंग द स्टेटमेंट्स अगेंस्ट इंडिया। बहुत ज़्यादा उनमें एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वो दे रहे हैं, अपने भाषण में बता रहे हैं लोगों को। एंड ही ऑल्सो सेड कि ये जो नया मैप है, दिस मैप विल बी सून गिवन ऑफ टू ऑल द 7 स्टेट्स ऑफ नेपाल, इंक्लूडिंग देयर 77 डिस्ट्रिक्ट्स। फाइन। सो अब या तो ये हो सकता है कि इंडिया और नेपाल दोनों आमने सामने टेबल पर बैठ के, जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, जो डेलीगेट्स हैं, डेलीगेशन है हमारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री की, वो बैठकर इस मुद्दे को सुलझाएं। और ये भी हो सकता है कि नेपाल इस इशू को यूनाइटेड नेशन के सामने लेकर जाए, बिकॉज इट इज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। फाइन। अच्छा, एक यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट और है। 2015 में जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था ना, उस वक्त इंडिया ने अपने सारे बॉर्डर कंट्रोल को यहाँ पर लॉक कर दिया था। मतलब इंडियन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ एनीवन टू कम और गो अक्रॉस नेपाल, क्योंकि नेपाल एक ऐसा देश है वेयर यू डोंट नीड अ पासपोर्ट टू गो, राइट। इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ना ही इंडियन सिटीजन को पासपोर्ट है नेपाल ट्रैवल करने के लिए, ना नेपाल के सिटीजन को पासपोर्ट की ज़रूरत है। इनफैक्ट हमारी करेंसी भी नेपाल में काम करती है, नेपालीज करेंसी हमारे कुछ बॉर्डर टेरिटरीज में, स्टेट्स में एक्सेप्टेड है। सो दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन ट्रेडिशन, कल्चर वाइज, लैंग्वेज वाइज। इनफैक्ट तो काफ़ी हमारे फ्रेंडली रिलेशंस रहे हैं नेपाल के साथ। तो ये जो करेंट सिचुएशन अभी डेवलप हुई है, सो ऑल वी कैन डू इज, our government can do is, they should sit with the ministers, with the delegations from the Nepal and should sort out the disputes. एक रीज़न यहाँ पे और ऐसा कुछ आर्टिकल्स पढ़ने में मुझे समझ में आया, one major factor which might have influenced this step of Nepal is the Chinese factor. इसको आप पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, Chinese factor। चाइना का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल रहा है। द नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ। इनफैक्ट चाइना का यहाँ पे एक बहुत ही मेजर रोल रहा है, सिंस चाइना इज इन्वेस्टिंग ह्यूज लॉट ऑफ मनी इन वन देयर मेजर प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट का नाम है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा चाइनीज एंगल समझाना चाहूँगी। चाइना का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है ओबोर। इसको कहा जाता है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। बेल्ट का मतलब है रोड एंड रोड का मतलब है यहाँ पर सी रूट। So China is trying to connect with various countries in the world through roadways, railways and through the ports, through waterway as well.
ठीक है। तो चाइना ने आज की डेट तक, मतलब ऐसा बोलते हैं तकरीबन 8 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो ऑलरेडी इन्वेस्ट किए जा चुके हैं अंडर दिस प्रोजेक्ट। n number of countries, I think more than 60 countries are part of this entire project, ठीक है। there are many European countries, Asian countries, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज में चाइना ने अपना यहाँ पे पैसा लगाया। व्हाट इज चाइना डूइंग? चाइना इन अलग अलग कंट्रीज में जाकर उन कंट्री के गवर्नमेंट को ये बोल रहा है कि वी विल डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन योर कंट्री, हम आपके कंट्री में रोड्स बनाएंगे, हम आपके कंट्री में हाईवे बनाएंगे, एयरपोर्ट्स बनाएंगे, एंड वी विल गिव यू द लोन फॉर दैट पर्पस, राइट। तो जब आपके कंट्री में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, लेट्स से अगर रेलवे ट्रैक बन जाते हैं, रेलवेज काम करने लगते हैं, सो वॉट एवर रेवेन्यू यू विल अर्न, सो इवेंचुअली आप हमको थोड़ा थोड़ा हमारा लोन रीपेमेंट करते रहिए और आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन ही जाएगा। सो लॉट ऑफ कंट्रीज दे हैव एक्चुअली बोरोड लोन्स फ्रॉम चाइना अंडर दिस एंटायर प्रोजेक्ट, ओके। चाइना का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था दैट वाज इन 1949। तो चाइना का इंटेंशन है बाय 2049 वो अपने ओबोर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें ताकि वो अपना 100 ईयर्स का सेलिब्रेशन कर पाए, ठीक है। दे हैव दिस अल्टीमेट गोल, ठीक है, सेलिब्रेटिंग 100 ईयर्स ऑफ चाइनाज डेवलपमेंट थ्रू ओबोर। सो इसी प्रोजेक्ट के चलते उन्होंने नेपाल में भी काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं। पहले जो भी रिलेशंस रहे हो नेपाल और चाइना के, लेकिन अभी बिकॉज चाइना हैज़ इन्वेस्टेड लॉट ऑफ अमाउंट इन नेपाल, इनफैक्ट आप देखेंगे कि बहुत सारे कंट्रीज हैव कम अंडर द हाई इन्फ्लुएंस ऑफ नेपाल, हाई इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, लाइक नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया, देन यू हैव पाकिस्तान। यस, इसी तरह का एक सिमिलर प्रोजेक्ट उन्होंने अंडर ओवर पाकिस्तान में किया हुआ है, विच इज हैविंग द कन्फ्लिक्ट विद इंडिया एज वेल। उस प्रोजेक्ट का नाम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, राइट। तो चाइना ने क्या किया है, पूरे के पूरे यूरोपियन कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज में, इनफैक्ट एशियन कंट्रीज में अपनी कनेक्टिविटी, अपना लिंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं अंडर द ओबोर। तो अब नेपाल जो है वो काफी ज्यादा लोन लेके बैठा हुआ है चाइना से। सो व्हाट इज चाइना डूइंग? China is trying to distract the attention of the world from the major crisis, जो अभी आप सब इस चीज़ से वाकिफ है, the कोरोना वायरस इशू, ये जो कोविड-19 का इशू है, this started in China, ठीक है। the कोरोना वायरस came from वुहान, चाइना। वुहान जो कि एक छोटा सा शहर है उनके एक स्टेट का जिसका नाम है ह्यूबेई प्रोविंस, ह्यूबेई प्रोविंस से इसकी शुरुआत हुई थी, राइट। सो what is China trying to do? Because every country in the world is now facing the problem of COVID-19. It has killed more than 3.5 lakh people. It has affected around 20 lakh people. ठीक है? So अब China is trying, because their image is already destroyed in front of the world. USA is taking aggressive stance against China. बहुत सारे economic sanctions चाइना के खिलाफ लगाने की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज, इकोनॉमी पूरी क्रश हो चुकी है, द इकोनॉमी इज क्रिपल्ड, पीपल आर डाइंग, देयर इज नो फाइनल आउटकम, नो फाइनल क्योर फॉर द डिसीज टिल नाउ। आप सभी इस चीज़ से वाकिफ है। तो ऐसा लगता है कि चाइना इस वक्त बहुत सारे इशूज को क्रिएट कर रहा है, जैसे कि आप जानते होंगे रिसेंटली इट इज हैविंग द स्टैंड ऑफ विद इंडिया एज वेल, देन दिस प्रॉब्लम। तो चाइना माइट हैव इन्फ्लुएंस नेपाल कि आप इंडिया के साथ इस तरह का कुछ ट्रबल क्रिएट करिए, सो दैट इंडियाज अटेंशन विल बी फोकस्ड ऑन दिस नेपाल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। बिकॉज आप देखिए पाकिस्तान भी पूरी तरह से भी चाइना के कंट्रोल में है, बिकॉज चाइना हैज इन्वेस्टेड ह्यूज लॉट ऑफ मनी इन पाकिस्तान एज वेल अंडर द सेम ओबोर प्रोजेक्ट, इन्वेस्टेड ह्यूज लॉट ऑफ मनी इन नेपाल एज वेल अंडर द सेम ओबोर प्रोजेक्ट। तो हो सकता है कि चाइना के प्रेशर में आके नेपाल इस तरह के कदम उठा रहा है, बिकॉज ये फैक्ट समझ में नहीं आता कि इतने सालों से जब इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस लिपुलेख पास तक यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है, वी हैव बीन डेवलपिंग दैट एरिया, द कालापानी टेरिटरी वाज कंट्रोल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, व्हाई सडनली इज नेपाल शोइंग द न्यू पॉलिटिकल मैप टिल लिम्पियाधुरा रेंज? और इतना अग्रेसिव स्टांस जो केपी शर्मा ओली है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, उनका बहुत ही अग्रेसिव स्टांस है इंडिया को लेकर। ही सेड दैट वी विल नॉट बी स्केयर्ड टू टेक द इशू अप टू द यूनाइटेड नेशन। इनफैक्ट इंडिया की वजह से नेपाल में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस आए हैं एंड इंडिया इज ट्राइंग टू डोमिनेट ओवर हेयर। सो उनका इस तरह का स्टांस पहले नहीं था, गवर्नमेंट की पॉलिसी पहले ऐसी नहीं थी इंडिया के लिए, माइट बी द चाइनीज इन्फ्लुएंस।